Hello friends, welcome to my educational channel Gravity Tech. This series of videos will help you to learn C++ course with practical examples from the beginning. To learn C++, it is very important that you know C programming language first. Why? Because C language is a subset of C++. In other words, C++ is a superset of C language. Okay, means all required basic building blocks for C++ language are covered in C language only, like character set, variables, tokens, keywords, identifiers, data types, operators, functions, pointers, structures, union, and so on, right? So all these things are very important when you start with the C++. So I assume that you know all these concepts before we start this. If you don't know what is the C language, or if you want to revise your C language concepts, you can go to my channel and revise all of your C programming concepts. Go to the description of this video to grab the link to the C programming course. You will be able to revise all of your C language concepts with practical examples within 11 hours of your time. Okay? अगर आपको C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं जानते हैं या फिर आपको C लैंग्वेज कंसेप्ट रिवाइज करने हैं, तो आप मेरे चैनल के पे जाके ओनली 11 आवर्स में पूरा C लैंग्वेज सीख सकते हो या फिर रिवाइज कर सकते हो. C लैंग्वेज प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा. Okay, now let's see what exactly are we going to cover in this video now. So what are the session objectives? The objective is basically to know what is OOPS, what are the basic, not basic, yeah, building blocks of C++, and what exactly the classes and objects with some practical example. Let's go to the next slide now. Now what is OOPS, right? So OOPS basically stands for object oriented programming. OOPS stands for object oriented programming. Okay, in which we create objects in a code which has certain properties and methods, and then we use it further for programming. Okay, now then what is the difference between C and C++ then? C is a procedural programming language where we write the procedures or functions that perform on the data. Okay, whereas C++ is an object oriented programming language in which we basically create the objects that contain the data and functions. Okay, so C is a procedural programming language, whereas a C++ is a object oriented language. Okay, now the main aim of OOPS is to bind together the data and functions that operate on them so that no other part of code can access this data except that function. See, so what is object? We are going to see this in detail, right, when we will start with actual examples, but this is kind of like theoretical concepts which you should basically be aware of, right? Now when we say object oriented programming, right, and we say object is like object contains data and functions, so what exactly it means, right? Object is made up of some properties and routines. So let's say this is the object, right? Now object is made up of some properties and routines. Properties means data members. Properties means data members, whereas routines means the functions which we use to perform the operations on that data. Routine means the functions that we use to perform defined operations on that data members. So what we can conclude? We can say object is basically a object is basically a data member plus member functions. Okay, remember. Now we'll see what exactly it is, but remember as of now object क्या होता है? Object मतलब data members plus member functions होते हैं. Okay, we'll see what exactly it is. Yeah. Now what are the building blocks of OOPS, right? So before you learn C++, you need to understand what are the building blocks of C++. So there are 8 building blocks of C++. Okay, if you see here, class is the first one, then object is the another one, then encapsulation is the third one, inheritance is the next one, abstraction is the fifth one, polymorphism is the next one, dynamic binding
and message passing. So these are the 8 building blocks of OOPS. So you need to know class, object, encapsulation, inheritance, abstraction, polymorphism, dynamic banding, message passing. Or with all these concepts, basically the OOPS is made up of. Okay, so remember, OOPS के ये 8 बिल्डिंग ब्लॉक्स है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है, जहां जो मिल के पूरा का पूरा C++ रेडी होता है. Okay, and the same thing applies for other object oriented programming languages too. Okay, now let's start with some concepts, right, and practically learn one by one. So सबसे पहला जो बिल्डिंग ब्लॉक है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स था, राइट. So what exactly are we going to cover maybe in this session, right, maybe in this slide particularly. So what is object, what is class, what is a data member and what is a data function, ये चार चीजें हम यहाँ पे कवर करने वाले. So सबसे पहले what is a class and what is object. Class मतलब क्या, object मतलब क्या. So class is kind of, let's say, blueprint of an object which using which any number of objects can be created, right. मतलब क्या, क्लास एक ब्लूप्रिंट होता है जिससे आप नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हो. ब्लूप्रिंट का मतलब क्या, उसे स्टोर करने के लिए कोई जगह नहीं लगती. इट्स काइंड ऑफ जस्ट टेम्पलेट, जेनरिक या इमेजिनरी कंसेप्ट होता है, मे बी ए कंसेप्ट वी कैन से, राइट. नाउ लेट्स से बिल्डर, राइट. अगर बिल्डर को एक बिल्डिंग बनानी है, बिल्डर को अगर एक बिल्डिंग बनानी है जिसमें वो 60 फ्लैट्स रखने वाला है, एंड सभी 60 फ्लैट्स का जो रहेगा, राइट, मे बी ए काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, वो पहले स्ट्रक्चर रेडी करेगा, राइट. वो स्ट्रक्चर रेडी करेगा. सो दैट काइंड ऑफ जो स्ट्रक्चर उसने रेडी करके रखा होगा, दैट इज अ क्लास, दैट इज अ क्लास. और वो स्ट्रक्चर रेडी करने के बाद उस स्ट्रक्चर को यूज करके जो ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे जाएंगे, राइट, दोज ऑब्जेक्ट्स आर समथिंग काइंड ऑफ लाइक घर, जो फ्लैट्स होते हैं, राइट. सो with that particular one single blueprint structure template, 60 objects of same kind of such a homes, right, flats are created. So objects क्या होते हैं कि जिनको particularly जगह लगती है. So there is a space which is required to store object. Okay, now so class is a blueprint of an object using which any number of objects can be created. Or you know, every object will have their own data members and member functions. I mean, what is a data members and what is a member function, ये भी हम देखते हैं, right. Let's say for example, हम लोगों ने क्लास ले लिया कार. अब अब कार बहुत जेनरिक कंसेप्ट है, राइट. कार क्या है, बहुत जेनरिक कंसेप्ट है. व्हेन वी लुक एट लाइक बलेनो, सियाज, i20, mg हेक्टर एक्सेट्रा, दीज आर द एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कार, करेक्ट. कार जनरल कंसेप्ट है. जब हम हमारे दिमाग में अगर कोई हमको अगर कोई बोलता है कि कार, राइट, लेकिन कार के बाद हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से मॉडल का कार है, विच बेसिकली इट इज, राइट, विच ब्रांड इट इज, व्हाट टाइप ऑफ कार इट इज, राइट. सो that that gives us the details of the actual object. But when we talk about the car, it tells only about like class कि ये blueprint है. So car is a kind of blueprint which can be used to create several objects. So class doesn't need any space. Class को store करने के लिए कोई भी space नहीं लगता, as it is a kind of template concept blueprint. But जब object create होता है, when object is created, it would need a space or memory. So object is basic unit of object oriented programming. In other language, object is what we call it as an instance of a class. Object क्या है, instance of a class है. Now every object is going to have a data members and member functions. अभी object के बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले बात करते हैं class के बारे में. अभी class के अंदर data members और member functions होते हैं, right. Let's say भी कार, आप अगर कोई भी कार लो तो हर एक कार के लिए कुछ प्रॉपर्टीज रहेंगे, राइट. हर एक का कोई भी कार ले लो, हर एक कार का कोई ना कोई प्रॉपर्टी रहेगा. लेट्स से उसका कलर रहेगा, ब्रांड रहेगा, ब्रांड कैन बी लाइक BMW, मारुति, हुंडई. मॉडल रहेगा, मॉडल में लेट्स से BMW X5, X3, बलेनो, मारुति बलेनो, हुंडई i20. अगर हम टाइप भी रहता है, टाइप लेट्स से हैचबैक, सीडन, SUV. उसको टायर्स रहते हैं, स्टीयरिंग रहता है, ब्रेक रहते हैं, क्लच रहते हैं, सीट्स रहते हैं, बूट स्पेस रहता है, एक्सेट्रा. सो अगर हम कार की बात करें तो हर एक कार के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं उन. सो और जब हम कोई भी कार का ऑब्जेक्ट लेंगे तो हर कार के ऑब्जेक्ट को प्रॉपर्टीज अलग अलग रहेंगी, राइट. ऐसा होगा कि दो कार को सेम
सेम प्रॉपर्टीज है। सेम प्रॉपर्टीज मतलब क्या है कि दो कार मिलके एक स्टीयरिंग यूज कर रहे हैं, दो कार मिलके सेम टायर यूज कर रहे हैं, ऐसे नहीं होगा। सो जब हम क्लास में डिफाइन करते हैं तो क्लास में हम लोग डेटा मेंबर्स डिफाइन करते हैं, और जब उस क्लास का ऑब्जेक्ट जब भी क्रिएट होगा तब उस क्लास उस ऑब्जेक्ट के लिए पूरे के पूरे जो मेंबर्स रहते हैं उसके लिए सेपरेट स्पेस अलोकेट होता है, राइट। सो इसको बोलते हैं डेटा मेंबर्स। So every object has some properties in terms of, let's say, car class. Every car object will have these properties which I just told, right? Color, brand, model, type, tire, steering, brake, clutch, seat, boot space, etc. Right? So every object has some measurable properties, and these properties are called as a data members or data variables of the object. Now, then what is a member function? हम लोग बोलते हैं कि क्लास एक ब्लूप्रिंट है, ऑब्जेक्ट हम क्लास के ब्लूप्रिंट से बनाते हैं, और हर एक ऑब्जेक्ट के लिए डेटा मेंबर्स रहते हैं, डेटा फंक्शंस रहते हैं। अभी हमने डेटा मेंबर्स देखा, लेकिन डेटा फंक्शंस क्या होते हैं फिर, राइट। नाउ लेट्स से यू हैव अ डेटा मेंबर्स, राइट, विद एवरी ऑब्जेक्ट, लेकिन आप उस डेटा मेंबर के साथ करोगे क्या? अभी लेट्स से आपका कार है, राइट। अभी कार के कार को स्टीयरिंग है, ब्रेक है, क्लच है, आप इसके साथ करोगे क्या? आप इसको चलाओगे, राइट। आपको क्लच जब आप स्टॉप करोगे, स्टार्ट करोगे कार को, करेक्ट। सो ये सभी फंक्शन आप उस पर करोगे। यू विल बेसिकली परफॉर्म ऑल दिस फंक्शंस ऑन दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। जो कार आपके पास है, कार का ऑब्जेक्ट, उस कार के ऑब्जेक्ट पे आप कुछ फंक्शंस एग्जीक्यूट करोगे, फिर फंक्शंस परफॉर्म करोगे, राइट। इसीलिए वहां पे हर एक ऑब्जेक्ट को कुछ फंक्शंस भी दिए जाते हैं, जो फंक्शंस उस जितने डेटा मेंबर्स है उसमें से किसी डेटा उसमें से कुछ या फिर सभी डेटा मेंबर्स पे क्या होते हैं, परफॉर्म किए जाते हैं। सो वी हैव द डेटा मेंबर्स, बट एवरी ऑब्जेक्ट with every object we can perform some functions with the help of these data members, like we can say start car, accelerate car, stop car, right turn, park car, etc. So to perform all of these activities or actions we need functions for every object. So हर एक ऑब्जेक्ट में उसके डेटा मेंबर्स रहते हैं जिससे हम प्रॉपर्टीज बोलते हैं, और मेंबर फंक्शंस रहते हैं जो हम यूज करते हैं रूटीन्स या फिर फंक्शंस उन डेटा मेंबर्स पे परफॉर्म करने के लिए। ओके, नाउ दीज आर बेसिकली कॉल्ड एज मेंबर फंक्शंस। सो अगर हम कार क्लास की बात की जाए तो कार क्लास में डेटा मेंबर्स होते हैं, लेट्स से कार मॉडल, कार टाइप, इंजन कैपेसिटी, इज मैनुअल, बूट स्पेस, सीटिंग कैपेसिटी, और उसमें फंक्शंस होते हैं, राइट। कार बिल्ड करो, कार को स्टार्ट करो, कार को रन करो, कार स्टॉप करो, कार को लॉक करो, कार सर्विस को लेके जाओ, पार्क करो, राइट। सो every object has a data member and the member functions. Understood? Okay, so to define in a two lines what exactly the class means and what exactly the data members and data functions means. A class is used to specify the form of an object, and it combines the data representation and the methods of the manipulating that data into one neat package. The data and functions within a class are called of the called members of the class, remember. Okay, now let's look at practically how to define a class, its object, data members, and member functions, right. We will basically create a class, we'll create a single object, we'll create a multiple objects, we'll add some data members, we'll add member functions, uh, that is also we'll call it as a member methods, and then routines. We'll perform some defined operations on the class objects, right. Let's maybe go to the IDE now. Okay, now let's see what exactly are we going to do here. Okay, so exercise is going to be like, we will first create a class for car, correct. Then we will add a data members there, data members. Now what are the data members? Let's add car model, correct. Let's say car brand, car type. अभी के लिए इतने ही ऐड करते, then you can any you can add like easily other, right. फिर उसमें हम लोग कुछ मेंबर फंक्शंस ऐड करते हैं, add member functions,
Now let's say which member functions do we need to add. हम start करेंगे कार को, let's say start car, correct. Then drive car, कार स्टार्ट करने के बाद उसको ड्राइव भी करना है, राइट. हम इसमें चेंज गियर भी डाल सकते हैं, करेक्ट. देन we can also have like increase speed, decrease speed, ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हम लिख सकते हैं. हम सभी के सभी नहीं लिखने वाले हैं, बट आई एम टेलिंग यू राइट व्हाट एग्जैक्टली what exactly we can do, right? We can say stop car, right? Then we can say lock car, right? Then what we can say, service car, then park car, right? Maybe we can say fold seat, right, to maybe load extra luggage. Okay, let me just save this one, right? Car, yeah. Okay, let's start now. So we start with the preprocessor part, hash include, right? Before hash include we should use using namespace std. ये क्या होता है मैं बताऊंगा आगे आप लोगों को, ओके. सो डोंट वरी अबाउट इट. सो यूजिंग और नेमस्पेस ये दोनों क्या है, कीवर्ड्स है, क्योंकि ये आपको ब्लैक बोल्ड इसमें दिख रहे हैं. अलग अलग एडिटर्स में इनका जो कलर होता है चेंज होते रहता है, ओके. सो यहाँ पे dev C++ में ब्लैक दिखते हैं ऑल द कीवर्ड्स. नाउ हैश इंक्लूड वी वुड से IO स्ट्रीम. यहाँ पे डॉट एच लिखने की जरूरत नहीं होती है सी प्लस प्लस में, लेकिन सी में हमको डॉट एच लिखना पड़ता है, ओके. आप अगर यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये बताता है कि इसका लोकेशन क्या है, दिस L01, राइट. IO स्ट्रीम इंक्लूड करना है. देन इंक्लूड व्हाट वी शुड इंक्लूड, राइट, लेट्स से स्ट्रिंग. ये हमें इंक्लूड करना है सी आउट सी इन के लिए, और ये हमें इंक्लूड करना है टू डील विद द स्ट्रिंग्स, ओके. नाउ हमें क्लास क्रिएट करना है, राइट. क्लास कैसे क्रिएट होता है, क्लास क्रिएट होता है एक क्लास कीवर्ड से. सी, क्लास नाम का कीवर्ड आपको लिखना है जो क्लास आप रेडी तैयार कर रहे हैं, एंड देन क्लास का नाम. सो हाउ इट इज, क्लास कीवर्ड, देन देयर शुड बी अ क्लास नेम, ओके. कर्ली ब्रेस ओपन करो, कर्ली ब्रेस एंड करो, और सेमीकोलन दे दो एंड करने के लिए, ओके. और फिर यहाँ पे डेटा मेंबर्स लिखो, राइट. डेटा मेंबर 1, डेटा मेंबर 2 करके, राइट. डेटा member 1, data member 2, 3, like that and so on, okay. इस तरीके से आपको डेटा मेंबर्स ऐड करने हैं. विल सी इन एक्चुअल ये कैसे करना है. डेटा मेंबर्स होने के बाद, सो डेटा मेंबर्स, ओके. नाउ यू नीड टू ऐड मेंबर फंक्शंस टू, राइट. तो मेंबर फंक्शंस यहाँ पे लिखने, डिफाइन करने हैं, या फिर आप बाहर भी डिफाइन कर सकते हैं, राइट. मेंबर फंक्शन 1, करेक्ट. मेंबर फंक्शन 2, इस तरीके से आप इसको डिफाइन भी कर सकते हैं. यहाँ पे लेट्स डिफाइन एज ऑफ नाउ, राइट. इस तरीके से मेंबर फंक्शन 2 एंड ऑल, तो इस तरीके से करना है. नाउ लेट्स मे बी डिफाइन ए कार क्लास. कार क्लास को हमको डिफाइन करना है, तो हम इस तरीके से करेंगे. क्लास कीवर्ड, क्लास का नाम, ओपन करली ब्रेस, एंड करली ब्रेस, ओके. नाउ सबसे पहला पार्ट डेटा मेंबर्स. हमें पता है डेटा मेंबर्स कैसे है. नाउ क्लास के अंदर आप जो भी डिफाइन करते हो, क्लास के अंदर आप जो भी डिफाइन करते हो उसको एक एक्सेस स्पेसिफायर होता है. क्या होता है, एक्सेस स्पेसिफायर. वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं. एक्सेस स्पेसिफायर मतलब क्या, ओके. एक्सेस स्पेसिफायर्स होते हैं पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड, रिमेंबर. तो अभी के लिए मैं यहाँ पे डायरेक्टली पब्लिक यूज कर रहा हूँ, लेकिन हम लोग आगे बाद में देखेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में ये क्या होता है.
So public, because all of these are kind of public. See, this is a keyword again. Public is what? A keyword, right? तो हमें चाहिए कार का ब्रांड लिख देते हैं पहले. कार का ब्रांड क्या हो सकता है? व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ कार ब्रांड? ब्रांड मतलब कंपनी. कार का कंपनी हो सकता है BMW हो सकता है, होंडा हो सकता है, मारुति हो सकता है, हुंडई हो सकता है, एंड सो ऑन, राइट? इसलिए मैंने स्ट्रिंग लिखा है. सेकंड है कार टाइप लेते हैं हम लोग. कार टाइप क्या हो सकता है? एक तो सीडन होगा, SUV होगा, या फिर हैचबैक, राइट? इस तरीके से लेट्स से. तो ये भी स्ट्रिंग है, इसलिए स्ट्रिंग ले लिया. नेक्स्ट लेट्स से कार मॉडल. अभी आपको पता है कार कौन सी कंपनी का है, किस टाइप का है, तो उस कार का मॉडल भी रहेगा कुछ. लेट्स से इट कैन बी X5 जो BMW में आता है, X3 अगर हम होंडा की बात करें, राइट, होंडा सिटी, करेक्ट. मारुति की बात करें लेट्स से बलेनो, हुंडई की बात करें लेट्स से i20, करेक्ट. इस तरह से अभी के लिए इतने ही लगते हैं. सो दैट देन यू कैन इजीली ऐड अदर्स. बाकी के और ज्यादा प्रॉपर्टीज आप लोग इजी से ऐड कर सकते हो. नाउ इट्स अ टाइम फॉर मेंबर फंक्शंस, जिसको हम रूटीन्स भी बोलते हैं, ओके, मेथड्स भी बोलते हैं, ओके. ओके, सो अगेन आई विल यूज लेट्स से पब्लिक हियर. हम यहाँ पे प्राइवेट भी लिख सकते हैं. व्हाट वी कैन से प्राइवेट एज वेल, राइट? प्राइवेट मतलब ये उस ऑब्जेक्ट को प्राइवेट रहेंगे. वी विल सी व्हाट एग्जैक्टली इज, राइट? लेट्स से इसको या प्राइवेट रखते हैं, पब्लिक. सो पहला फंक्शन लिखते हैं हम लोग सेट ब्रांड. ये सभी सेट करते हैं पहले, राइट? अगर आप कहीं से सेट कर रहे हो, सेट मतलब क्या करना है कि ऑब्जेक्ट जो भी क्रिएट होगा उसको ब्रांड सेट करो, राइट? सो आप जो भी पास करोगे, या आप जो भी यहाँ पे पास करोगे, वो सेट हो जाएगा ब्रांड उसका. कार ब्रांड इज इक्वल टू व्हाट? ब्रांड, करेक्ट. ये हो गया पहला मेथड जो क्या करता है, आप जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो उस ऑब्जेक्ट को उसका ब्रांड सेट कर देगा. तो आप इस फंक्शन को सेट ब्रांड को एक कुछ तो स्ट्रिंग भेजोगे, जो स्ट्रिंग उस पर्टिकुलर इसके कार ब्रांड को सेट हो जाएगा. नेक्स्ट लेट्स से सेट टाइप. सेम हम यूज क्या कर रहे हैं? सेम, राइट? लेट्स से स्ट्रिंग टाइप. सो कार टाइप जो है यहाँ पे आ गया टाइप. सिमिलरली हम और ये भी सेट कर सकते हैं. लेट्स से द थर्ड वन. सो इसे बोलते हैं सेटर्स, ओके, गेटर्स एंड सेटर्स. ये हम लोग आगे और देखेंगे व्हाट एग्जैक्टली इट इज, राइट? सो मॉडल एंड देन मॉडल, ये हम डिटेल में देखने वाले हैं व्हाट एग्जैक्टली इट इज, ओके. और ये फंक्शंस कैसे रन होते हैं, क्या होता है, हर एक ऑब्जेक्ट के लिए फंक्शंस किस तरह से क्रिएट होते हैं, ओके. लेट्स से हम लोग को स्टार्ट वाला फंक्शन लिखना, स्टार्ट कार, करेक्ट. कार को स्टार्ट करना है, तो कार को स्टार्ट करना है मतलब हम ऐसे कुछ लिखेंगे नहीं, जस्ट वी विल जस्ट इंटर कि कार का इंजन स्टार्ट कर दिया हम लोगों ने, राइट? कार इंजन स्टार्टेड. नाउ एंडल, व्हाट इज दिस? दिस इज बेसिकली मैनिपुलेटर, कि ये नए लाइन पे लेके जाएगा. सी आउट क्या है? एक ऑपरेटर है. सी आउट क्या है? एक ऑपरेटर है. वो क्या करता है बेसिकली? ये ये प्रिंटफ जैसा काम करेगा. सी आउट क्या करता है? सी लैंग्वेज के प्रिंटफ जैसा काम करता है. सी आउट वर्क्स सेम एज, लेट्स से प्रिंटफ. सेम एज नहीं बोल सकते, देयर आर डिफरेंसेस, लेकिन प्रिंटफ का जैसे काम होता है स्क्रीन पे आउटपुट देना, सी आउट का भी काम होता है स्क्रीन पे आउटपुट देना. सी आउट क्या करेगा? ये पूरा स्ट्रिंग प्रिंट पे स्क्रीन पे रख देगा, कार इंजन स्टार्टेड, राइट? और नई लाइन और एक ऐड कर देगा. सिमिलरली हम एक काम करते हैं, स्टॉप भी लिख देते हैं फंक्शन में, राइट? लेट्स से स्टॉप, राइट? सो स्टार्ट की जगह फंक्शन का नाम क्या आएगा? स्टॉप. कार इंजन स्टॉप, करेक्ट. नाउ अभी हम लोगों ने मॉडल्स, कार के सभी प्रॉपर्टीज यहाँ पे सेट कर दे. देखो जो भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे उसके प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पे सेट कर दी, करेक्ट.
हम लोगों ने उसका स्टार्ट स्टॉप भी डिफाइन कर दिया, राइट। लेकिन अगर हमको पता लगाना है कि भाई ये कार कौन सा मॉडल की है, कौन से ब्रांड की है, कौन से टाइप की है, तो क्या यूज करेंगे हम लोग? अलग फंक्शन यूज करेंगे जो हमको बताएंगे क्या। लेट्स से कि इसका मॉडल क्या है, ये अगर हमको पता लगाना है तो लेट्स राइट अ फंक्शन गेट मॉडल। लेकिन गेट मॉडल रिटर्न क्या करेगा? स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। व्हाट इट विल रिटर्न? इट विल रिटर्न अ कार मॉडल, राइट। ये गेट मॉडल हो गया, मतलब क्या, ये मॉडल रिटर्न करेगा। सिमिलरली अगर हमको ब्रांड पता लगाना है तो ब्रांड के लिए हम क्या लिखेंगे? वी कैन से गेट ब्रांड। ओके। सिमिलरली अगर हमको टाइप पता लगाना है तो हम क्या लिखेंगे? गेट टाइप, राइट। सो ये हो गया ऑल गेट फंक्शंस। सो दीज आर द मेंबर फंक्शंस। देखिए 71 लाइंस का हम लोगों ने क्या लिखा है? क्लास लिखा। सो दिस इज अ कार क्लास। कार क्लास के अंदर ये मेंबर फंक्शंस है, राइट। सॉरी, दीज आर द डेटा मेंबर्स। 3 डेटा मेंबर्स है। आप यहाँ पे बाकी के और डेटा मेंबर्स भी लिख सकते हो जो हमने यहाँ पे ऐड आराम से ऐड कर सकते हैं, राइट। नाउ वी हैव डिफाइंड सम स्टार्ट सेटर्स की जो वैल्यू सेट कर देंगे। वी हैव डिफाइंड सम स्टार्ट एंड स्टॉप। वी हैव डिफाइंड की जो हमको बताएगा कि नहीं कार का मॉडल क्या है क्या नहीं है, राइट। अभी ये हो गया क्लास, लेकिन क्लास को रन कैसे करना है? एंड वन मोर थिंग, ये जो फंक्शंस है, राइट, आप ये किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो। ओके, दिस फंक्शंस यू कैन राइट इन एनी ऑर्डर। और इवन ये फंक्शंस आप बाहर भी लिख सकते हो, हम देखेंगे बाहर कैसे लिखना है, विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर्स। अभी के लिए आपको जस्ट क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, किस तरह से लिखते हैं, ये पता होना चाहिए। दिस इज द एजेंडा, दिस इज द गोल ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो। ओके। अभी क्लास डिफाइन करने के बाद क्लास को आपको रन करने के लिए सी प्लस प्लस में भी एक मेन फंक्शन होना पड़ता है जो आउटसाइड ऑफ क्लास होता है। सी प्लस प्लस में भी क्या होता है? मेन फंक्शन होना चाहिए जो आउटसाइड ऑफ द क्लास होता है, राइट। अगेन द सेम वे इन सी लैंग्वेज जैसे हम लिख सकते हैं मेन फंक्शन को। जैसे हम अभी इंट एक्स लिखते हैं, राइट, कैर वाई, फ्लोट ए, ऐसे जो लिखते हैं, राइट। व्हाट डज दैट मीन? एक्स जो है वेरिएबल है ऑफ इंटीजर टाइप, वाई जो है वेरिएबल है ऑफ कैर टाइप, ये जो है वेरिएबल है ऑफ फ्लोट टाइप। सिमिलरली हमें वेरिएबल्स मतलब क्या? ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स मतलब क्या? वेरिएबल्स। ओके, ऑब्जेक्ट्स मतलब क्या? वेरिएबल चाहिए। किस टाइप के? कार टाइप के। तो हमारे पास एक नया टाइप आ गया है कार। हमारे पास क्या आ गया? नया टाइप कार। अभी हम कार का ऑब्जेक्ट डिफाइन करेंगे। लेट्स से कार का ऑब्जेक्ट मैंने बोल दिया बलेनो। कार का ऑब्जेक्ट मैंने क्या ले लिया? बलेनो। अभी ये जस्ट आपको बताने के लिए मैंने यहाँ पे रखा है, सो रिमूव कर दो। व्हाट डज दिस मीन? इस लाइन का मतलब क्या है कि बलेनो एक वेरिएबल है। बलेनो एक वेरिएबल है जो कार टाइप का है। तो इसमें क्या होगा कि जब आप ये डिफाइन करते हो क्लास, जब आपने क्लास डिफाइन किया ये वाला, तो मेमोरी में इसको कुछ भी जगह नहीं लगती है स्टोर करने के लिए। दिस इज नॉट स्टोर्ड एनीवेयर। लेकिन जब आप ए डिफाइन करोगे तो इसके लिए एक अलग से मेमोरी डिफाइन हो जाएगा। ओके, इट विल बेसिकली हैव अलग से ऐसे मेमोरी, इस तरह से मेमोरी डिफाइन हो जाएगा। ऑब्जेक्ट को कार टाइप रहेगा, इसको नाम नाम दिया जाएगा बलेनो। ओके, फिर इसमें डेटा मेंबर्स दिए जाएंगे, मॉडल, ब्रांड, टाइप। आप अगर और एक ऑब्जेक्ट डिफाइन करते हो तो उसके लिए फिर से अलग से मेमोरी होगी। तो हर एक ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग मेमोरी डिफाइन होती है और हर एक ऑब्जेक्ट का जो मेंबर डेटा मेंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं, रिमेंबर। ओके, सो दैट्स हाउ इट इज। सो हर एक ऑब्जेक्ट का एड्रेस अलग होता है। सो ये बलेनो है, मतलब बलेनो नाम का जो वेरिएबल क्रिएट किया गया है ऑफ कार टाइप, उसके अंदर ऑलरेडी अभी ये 3 वैल्यूज हैं, लेकिन अभी वो नल है। दोज आर नॉट सेट टू एनीथिंग। आप अगर यहाँ पे प्रिंट करोगे तो वो कुछ भी नहीं देगा। लेट्स से सी आउट, राइट, कार टाइप इज। अभी कार का टाइप अगर हमको देखना है तो बलेनो डॉट, देखो
जैसे हम स्ट्रक्चर में करते हैं उसी तरीके से यहाँ पे भी करना है सी लैंग्वेज में, कि आप डॉट करके उसके सभी प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हो। देखो क्या क्या प्रॉपर्टीज है, गेट ब्रांड है, गेट मॉडल है, गेट टाइप, सेट ब्रांड, सेट मॉडल, सेट टाइप, स्टार्ट स्टॉप, राइट। तो मुझे उसका ब्रांड निकालना है, तो आई विल से गेट ब्रांड, राइट। अभी आप अगर इसको रन करने की कोशिश करोगे तो व्हाट इट इज गोइंग टू गिव, लेट्स सी। क्योंकि अब तक हम लोगों ने कुछ भी सेट नहीं किया है, राइट, वी हैवंट सेट एनीथिंग एट इट। सो व्हाट इट विल बेसिकली गिव, करेक्ट, सी, उसने नल दिया, कार टाइप इज नल, नथिंग, करेक्ट। इसका मतलब क्या, जब आप का कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हो तो उसकी सभी प्रॉपर्टीज को एटलीस्ट आपको सेट करना होता है। तो लेट्स मे बी सेट दोस प्रॉपर्टीज, राइट। सो बलेनो डॉट सेट ब्रांड, पहले ब्रांड सेट कर देते। लेट्स से बलेनो किसका ब्रांड है, मारुति का, करेक्ट। देन बलेनो डॉट सेट मॉडल, मॉडल कौन सा है वो, इट्स बलेनो मॉडल, राइट। नाउ बलेनो का टाइप कौन सा है, सेट टाइप, इट इज हैचबैक, करेक्ट। अभी आप अगर देखोगे इसको, अगर आप प्रिंट करोगे तो वो आपको ब्रांड बराबर देगा, राइट। लेट्स मे बी ट्राई टू रन इट अगेन एंड इट शुड गिव यू द ब्रांड एज अ बलेनो टाइप, राइट। हम लोगों ने ओ brand it shouldn't give as a Baleno. Let's see now what exactly has happened, right? See क्या हुआ है, ये ब्रांड हम गेट ब्रांड बोल रहे हैं एंड इट इज बेसिकली गिविंग अस द मॉडल, क्यों, क्योंकि जब हमने कॉपी पेस्ट किया था तो कॉपी की पेस्ट करते वक्त हर जगह पे हम लोग क्या रिटर्न कर रहे हैं, कार मॉडल, कार मॉडल, कार मॉडल। तो ब्रांड में हम लोगों ने क्या रिटर्न करना चाहिए, कार ब्रांड। यहाँ पे हम लोगों ने क्या रिटर्न करना चाहिए, कार टाइप, रिमेंबर। सो आप फंक्शन किस तरह से उस पे कर रहे हो, राइट, डिफाइन कर रहे हो, एग्जीक्यूट कर रहे हो, वो मैटर करता है। ओके, नाउ सी द कार टाइप इज व्हाट, मारुति। Is it correct, it's not, right, q। now let's say type, right, car type should be what, hatchback। ओके, यहाँ पे ब्रांड, वी आर प्रिंटिंग ब्रांड एंड हम यहाँ पे टाइप कर रहे हैं कार ब्रांड इज, ओके। तो अगर आपको ये देखना है कि कार का टाइप क्या है, कार ब्रांड हो गया, कार का मॉडल, कार का टाइप, तो यहाँ पे फंक्शन चेंज हो जाएंगे, दिस विल बी मॉडल एंड दिस विल बी टाइप। तो आपको ये बताएगा कि ये किस टाइप का और मॉडल है। लेट्स सी नाउ, सी, सो कार का ब्रांड है मारुति, मॉडल है बलेनो, टाइप इज हैशबैक, करेक्ट। सिमिलरली आप और एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो, लेट्स से x5, राइट। आप अगर x5 यूज कर रहे हो, राइट, सो व्हाट एग्जैक्टली इट शुड गिव। सो सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, x5 डॉट सेट करेंगे पहले, राइट, सेट ब्रांड, इट इज व्हाट, BMW, करेक्ट। x5 डॉट सेट मॉडल, मॉडल इज x5, करेक्ट। x5 डॉट सेट टाइप, लेट्स से hatchback, right, or maybe SUV, mini SUV, right, let's say, okay. So this way you can create any kind of objects, and then maybe when you try to put it here, right, see, when you try to put it here, let's say next car, right, see out, थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन भी अच्छा होना चाहिए, नेक्स्ट कार डिटेल्स आर। अभी हम एरे वगैरह सब यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी हम यूज कर रहे नहीं है, रिमेंबर एंडल, दैट विल बी व्हाट, ऑन न्यू लाइन। आप एंडल की जगह पे ये भी यूज कर सकते हो, ओके, इट्स नॉट लाइक कि आपको एंडल यूज करना है, स्लैश एन भी यूज कर सकते हो, ओके। नाउ यहाँ पे नेक्स्ट कार की जगह पे हम यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट कार डिटेल, अरे
control C, and then let's say control V, first car details are, right? इसको थोड़ा और अच्छा दिखने के लिए इस तरह से कर लेते हैं, ब्रांड, मॉडल। यहाँ पे एजम्पशन है कि आपको सी लैंग्वेज आता है, यू हैव डन सम काइंड ऑफ कोडिंग। ओके, तो ये हो गया ब्रांड, ये निकाल देते हैं, ये हो गया मॉडल, ये निकाल देंगे, लेट्स रिमूव दिस एज वेल। ओके, लेकिन यहाँ पे बलेनो ही प्रिंट हो जाएगा अगर हम बलेनो लिखते हैं तो। दिस शुड बी फॉर व्हाट, X5, करेक्ट। सी, अभी अगर हम इसको रन करेंगे, व्हाट एग्जैक्टली इट विल गिव। हाँ, ये सेम लाइन पे आ गया, इसको न्यू लाइन पे लेना है। व्हाट डज दैट मीन, दिस शुड बी ऑन द न्यू लाइन, करेक्ट। लेट्स से सी, आप आउटपुट आना एक अच्छी बात है, लेकिन उसको वेल फॉर्मेटेड रखना इज वेरी गुड थिंग। सी, ना फर्स्ट कार डिटेल्स आर लाइक ब्रांड, मारुति बलेनो हैचबैक, यहाँ पे और एक न्यू लाइन होना चाहिए था। और नेक्स्ट कार का डिटेल क्या है, BMW X5 एंड SUV। ओके, सो दिस इज आउट, एंड देन व्हाट यू कैन जस्ट से, राइट, कि हम यहाँ पे भी स्टार्ट वगैरह भी जो लिखे हम लोगों ने, राइट, सो यू कैन बेसिकली आल्सो यूज बलेनो डॉट स्टार्ट। बलेनो क्या हो गया, स्टार्ट हो गया, राइट। देन X5 डॉट स्टार्ट। अभी हम इसको थोड़ा सा डिफरेंट भी कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे जब हम कार इंजन स्टार्टेड ना, इसकी जगह पे क्या बोल सकते हैं कि कार, कौन सा कार स्टार्ट किया हम लोगों ने, वी हैव स्टार्टेड गेट मॉडल, राइट, दिस कार इज स्टार्टेड। अभी यहाँ पे क्या होगा, कार, लेकिन कौन सा कार, मारुति बलेनो स्टार्टेड। तो जब हम स्टार्ट यूज करेंगे तो ये बलेनो उस तरीके से प्रिंट करेगा, राइट। सिमिलरली ये वाला जो है, दिस शुड बी, यहाँ पे भी आएगा, लेट्स सी। सो यहाँ पे भी स्टॉप में भी वैसे उस तरह से आउटपुट आएगा। नाउ व्हेन वी से बलेनो स्टार्टेड, राइट, बलेनो स्टॉप, X5 हम लोगों ने स्टॉप किया। ओके, नाउ लेट्स ट्राई टू रन इट नाउ। सो दिस इज व्हाट इट इज। सी, थोड़ा सा इसको ऑल वेल फॉर्मेटेड करते हैं ताकि आपको मतलब अच्छे से समझ में आए, राइट। लेट्स से नेक्स्ट कार डिटेल्स आर, यहाँ पे, नाउ व्हेन वी लुक एट हियर, राइट, दिस शुड बी न्यू लाइन न्यू टैब, राइट, this should be on again new line new tab, yeah. Okay, now what exactly it is, see, so this is the output। सबसे पहले फर्स्ट कार के डिटेल्स हम लोगों ने प्रिंट किए, मारुति बलेनो हैचबैक। नेक्स्ट कार के डिटेल्स BMW X5 कार SUV, राइट, एंड देन कार बलेनो स्टार्ट किया हम लोगों ने, फॉर X5 स्टार्ट किया, बलेनो स्टॉप किया, X5 स्टॉप किया। तो इस तरीके से आप कार नाम का जो क्लास है वो लिख सकते हो, राइट। कार नाम के क्लास के अंदर आपको चाहिए वो डेटा मेंबर्स लिख सकते हो, राइट। ये मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में क्या होता है, राइट। एंड देन यू कैन हैव द मेंबर फंक्शंस। ये जस्ट मतलब कुछ मेंबर फंक्शंस मैंने लिखे हैं, लेकिन आप और मेंबर फंक्शंस में ऐड कर सकते हो जो जो मैंने यहाँ पे लिखे, राइट। फ्लोर, फोल्ड सीट, पार्क, सर्विस, लॉक, स्टॉप, डिक्रीज स्पीड, इंक्रीज स्पीड, चेंज गियर, राइट, ड्राइव कार, ये सभी फंक्शंस आप आराम से इसमें लिख सकते हो। ओके, सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली द क्लास मींस। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये जो क्लास था, इस क्लास के दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए। कितने ऑब्जेक्ट क्रिएट किए थे, दो। आप इस तरीके से इसके थाउजेंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हो, और फिर हर एक ऑब्जेक्ट के लिए उसका उतना साइज, एक सेपरेट मेमोरी क्रिएट होगा उसके लिए, राइट, सेपरेट स्पेस रहेगा। ओके, बट क्लास जब आप डिफाइन करते हो तो क्लास के लिए कुछ भी ऐसा
मेमोरी स्पेस वगैरह डिफाइन नहीं होता है। ओके, या सो होपफुली आपको क्लास मतलब क्या, डेटा मेंबर्स मतलब क्या, मेंबर फंक्शंस मतलब क्या, उसका ऑब्जेक्ट मतलब क्या, राइट, ये पता लगा होगा। नेक्स्ट लेट्स से नाउ लेट्स गो बैक टू द our slides, yeah, so this is all actually I had it from this video। अगले वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्लास मेथड्स क्या होते हैं इन डिटेल। ओके, जैसे हम लोगों ने क्लास मेथड्स, then we will see the access specifiers and what exactly the encapsulation means with more details। okay, so guys, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलते रहे, और इसको आपके सभी दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए ताकि बाकी के विद्यार्थियों को, बाकी के लोगों को भी इस चैनल का फायदा हो। और अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मेरे वीडियो को में कमेंट कीजिए, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू कवर दैट as soon as possible। Okay, so please do like, subscribe and share। I wish you happy learning with the Gravity Tech। Thank you।